Hey guys, hi to all. Welcome back in this channel again. So today we are going to discuss about English core, your examination, your paper style and how you are going to attempt your paper. It's really very important to discuss because I think in all the schools or all the students who are studying in 12th standard, they might have completed their syllabus by now. So it is really going to be very important that you have to listen, you have to see the videos in which there are full papers given. So here we are going to discuss about English core paper. The time which is allowed here is 3 hours and maximum marks आपको पता है they are 80. So before proceeding to your paper, there are certain instructions like please check that this question paper contain 11 printed pages. Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of answer book by the candidates. Please check that this question paper contain 10 questions. Please write down the serial number of the question in the answer book before attempting it. 15-minute time has been allotted to read the question paper. The question paper will be distributed at 10:15 a.m. From 10:15 a.m. to 10:30 a.m. the student will be reading the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period. So I hope everything must be clear to you. This is the space here you are going to mark or write your roll number. So you have to be very particular while writing about your roll number कि हमने जो roll number लिखा है is it correct or not. Okay, so now we are going to look and read the questions. There are following instruction. You have to read it carefully and strictly follow them. Question paper जो है that is comprising of 3 section A, B, C and ABC. Section A is of 20 marks, section B is of 30 marks and section C is again of 30 marks. So this is section A, which is always a reading skills. So यहाँ पे जो passage है, I am not going to read it, but yes, I promise you that I'll be providing the answers of this passage and all the questions in my next video. Okay, so read the passage carefully and then after read the questions too. Try to get their answers. Then after match your answers when I'll be uploading the next video with that one. Fine. So this is your examination style. Now on the basis of your reading of the above passage, answer any 5 of the following questions by choosing the best answers from the given option. This is part A, B, C, D, E, F. फाइन. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आपको फाइनेस्ट ऑप्शन लगता है, जो आपको बेस्ट आंसर लगता है पैसेज के अकॉर्डिंग, आपने वो आंसर जो है वो इन ऑप्शंस के अगेंस्ट जो आपको आंसर्स दिए हैं उनमें से आपको एक आंसर जो है वो मिल जाएगा, आपने उसको टिक करना है. ओके, और आपने इनमें से ये 5 क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, आपने इनमें से कोई 5 करने हैं. एक यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप उसको छोड़ सकते हो. नाउ 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपको इस स्टाइल में होगा कि फर्स्ट 5 आपको क्वेश्चन करने हैं जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs जिसको बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.2 जो है उसमें आपको 1, 2, 3 ABCDE क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन आपको सिंगल लाइन में उनके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करके लिखने हैं.
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.3 जो है वो आपका अगेन 2 मार्क्स का है और उसमें से आपको कभी कभी सिनोनियम कभी कभी एंटोनियम जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं और वो आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन 1.3 है उसमें पूछा है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज। सेम वर्ड है, इसका मीनिंग है कि आप सिनोनियम फाइंड आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे पार्ट ए जो है वो डेंजरस है, अनसेफ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरा 1 में है। बी ऑप्शन में आपको पूछा है हेल्पफुल वर्ड, उसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है, वो पैरा 3 में है। तो इतनी सी आपको हिंट होगी कि कौन सा पैरा कौन सी स्टेज में आपको पढ़ना है और कहाँ से आपको ये वर्ड जो है ये मिलेगा। लाइक सिमिलर मीनिंग या डिफरेंट मीनिंग। सिमिलर होगा तो सिनोनियम है, डिफरेंट मीनिंग ढूंढना है तो वो एंटोनियम है। तो ये ओवरऑल पैसेज जो आपने देखा, फर्स्ट पैसेज यहाँ पे लिखा है, इसके मार्क्स हैं 12 मार्क्स। तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है कि ये 12 मार्क्स जो हैं ये आप यहाँ से अटेन कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो भी एक पैसेज की फॉर्म में ही आता है, लेकिन इसमें आपने फाइंड आउट करना होता है पार्ट ए एंड बी। On the basis of your reading of the above passage, make notes on it using heading and subheadings. Use recognizable abbreviations, minimum 4, and a format you consider suitable. Supply a suitable title to it. तो इस क्वेश्चन में आपने पैसेज पढ़ने के बाद नोट्स बनाने होते हैं, एक टाइटल देना होता है, उसके बाद कुछ एब्रीविएशंस जो आप शॉर्ट फॉर्म्स या फिर शॉर्टकट्स यूज़ करते हो वर्ड्स लिखने के लिए, वो अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। तो वो आपने मिनिमम 4 लिखने हैं, लेकिन मैक्सिमम आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। पार्ट बी में आपको एक समरी लिखनी पड़ती है कि आपने पूरे पैराग्राफ में कंक्लूड कैसे करना है या उसका कंक्लूजन जो है वो कैसे बनाना है। तो ये 4 मार्क्स के आपके नोट्स रहेंगे और 4 मार्क्स की आपकी समरी रहेगी। टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे 8। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं टोटल 8 मार्क्स। फाइन। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो आपकी 30 मार्क्स की है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है आपकी राइटिंग स्किल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको पूछा है, जैसे कि यू आर अभिनव आरती, बॉयज़ हैं तो अभिनव लिखेंगे, गर्ल्स हैं तो आरती लिखेंगी। यू हैव प्लान अ 2-week कोर्स टू हेल्प 2 children, help the children of your group, Housing Society Vikas Sadan, Agra, to acquire spoken communication skills in English. Prepare a notice in not more than 50 words for the society's notice board, stating the objective of course, its timing, venue, and other necessary details. Request the children of the society to join the course as it will be very helpful and interesting. इसके साथ आपको ऑप्शन में है, द प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल शिमला रिक्वायर्स अ रिसेप्शनिस्ट फॉर हर स्कूल. ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट इन नॉट मोर देन 50 words stating necessary qualification, proficiency in the use of computer and good command of spoken English. Attractive salary. Apply before 20th of September. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में आपको नोटिस बनाना है, किसके लिए बनाना है? नोटिस, सोसाइटीज़ नोटिस बोर्ड के लिए। और सेकंड क्वेश्चन में आपको जो प्रिंसिपल है सनराइज़ ग्लोबल स्कूल शिमला के, वो एक रिसेप्शनिस्ट जो हैं वो चाहते हैं, उसके लिए आपने एक सुटेबल एडवर्टीज़मेंट बनानी है। दोनों ही क्वेश्चन में आपने 50 वर्ड्स ही लिमिट लेके चलना है। उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो नेसेसरी क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर के यूज़ में, और उसकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसकी कमांड अच्छी होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, मतलब बोलने में। और अट्रैक्टिव सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको अप्लाई करना है 20 से पहले सितंबर से पहले। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो इसको 1-2 बार रीड करो। उसके साथ में रीडिंग से आपकी जो है
कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है आपको पता चल जाएंगे कि हमने यहाँ पे लिखना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम आप चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन में ही पढ़ के आंसर्स बनाते हो. तो दीज आर द फ्री मार्क्स. आई थिंक यू कैन फेच देम इफ़ यू रीड द क्वेश्चंस 2 or 3 टाइम्स. सो इसको बार बार पढ़ो, पढ़ने के बाद इंफॉर्मेशन ग्रैब करो और फिर अपना आंसर जो है वो बनाने की कोशिश करो. बट द थिंग रिक्वायर्ड इज़ आपको फॉर्मेट्स जो हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द इनिशिएटिव ऑफ the Prime Minister of India to turn Gandhi Jayanti into Cleanliness Day was welcomed by one and all. Many celebrities have shown become part of this drive. Write a letter to the editor of Local Daily, appreciating this drive, emphasizing the need to maintain clean surrounding and thereby feel proud of a clean nation. You are Rajesh Rajni of V5147, Savdesh, Bihar, Delhi. The word limit is 120 to 150 words and it is mandatory that you must be there in the word limit. ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे, एक्सीड करोगे तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं. ये आपका है क्वेश्चन 6 मार्क्स का. तो 6 मार्क्स मीन्स आपने लिखना है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग गांधी जयंती जो होती है हमारी, उसको क्लीनलीनेस डे जो है वो बना दिया गया. और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उन्होंने भी इस ड्राइव को वेलकम किया और वो इसके पार्ट बने. आपने लेटर लिखना है एडिटर को, लोकल डेली वाले को एम्फेसाइज करते हुए, इस ड्राइव की अप्रिसिएशन करते हुए कि आपकी सराउंडिंग जो है या फिर आप प्राउड फील करते हो कि आपका नेशन जो है वो क्लीन है. तो आप रजनी हो या फिर राजेश हो, आपका एड्रेस दिया हुआ है, आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही लेके अपना क्वेश्चन जो है वो बनाना है. सेकंड क्वेश्चन जो है इसके अगेंस्ट या और में, यू आर कांता ऑफ 92 BPL कॉलोनी कोची. यू वांट टू डू अ कोर्स इन नर्सिंग. राइट अ लेटर टू द रजिस्ट्रार कॉलेज ऑफ नर्सिंग Trivandrum describing your present qualification, percentage of marks, age, etc. Ask for the courses you are eligible to pursue, procedure for admission, fee structure, any scholarship available, hostel facility, etc. Word limit is again there. तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रार को लेटर लिखना है जिसके बीच में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, बिकॉज़ आप नर्सिंग कॉलेज को चूज़ करना चाहते हो और आप मतलब प्रेजेंट क्वालिफ़िकेशन को डिस्क्राइब करते हुए, परसेंटेज मार्क्स सब कुछ बताते हुए ये पूछना चाहते हो कि आप जो कोर्सेज़ हैं अवेलेबल उनको परस्यू करने के लिए एलिजिबिलिटी आपकी है. प्रोसेस क्या है एडमिशन का या प्रोसीजर क्या है एडमिशन का, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है उस कॉलेज का, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है, फैसिलिटी जो है हॉस्टल की वो अवेलेबल है या नहीं है. तो एवरीथिंग यू आर आस्किंग फ्रॉम देम. तो इस तरीके से आपने रजिस्ट्रार को लेटर में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर मोहन मोहिनी ऑफ 12th स्टैंडर्ड विकास भारती स्कूल दिल्ली. रिसेंटली यू रीड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट एन इंसिडेंट इन विच अ चाइल्ड ट्राई टू इमिटेट द स्टंट shown on television and sustained serious injuries. Write an article on the hazards of unsupervised television viewing by kids and how parents should guide them in this matter. अब आपने मोहन या मोहिनी बन के जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं विकास भारती स्कूल दिल्ली में, आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है एक इंसिडेंट के बारे में जिसमें एक बच्चा जो है वो स्टंट जो है जो प्रोफेशनल्स करते हैं इमिटेट करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा चोट जो है वो आ चुकी है. आपने आर्टिकल लिखना है कि क्या नुकसान है जब टीवी जो है वो बच्चे अकेले बैठ के देखते हैं या अंडर सुपरविज़न नहीं देखते, तो पेरेंट्स को कैसे उनको गाइड करना चाहिए इस मैटर में. तो इसके लिए भी आपकी वर्ड लिमिट 150 to 200 वर्ड्स है और ये 10 मार्क्स का होगा बिकॉज़ ये लॉन्ग कंपोजिशन का क्वेश्चन है. तो ऑब्वियसली आप 10 मार्क्स में इसको लिखोगे. तो आर्टिकल का फॉर्मेट फॉलो करते हुए आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए टीवी का इम्पोर्टेंस जो है वो बताते हुए या फिर उसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं बच्चों के ऊपर वो बताते हुए अपना क्वेश्चन जो है उसको कंपाइल करोगे.
सेकेंड जो क्वेश्चन है इसी के साथ, रिसेंटली ड्यूरिंग द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर्स विजिट टू द लोकल सिविल हॉस्पिटल यू accompanied him as a reporter. You found that the children's ward was very neat and clean and the hospital was very well maintained. Imagine all possible details and write a report on the visit to be published in your newspaper. ये भी अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. आपने लॉन्ग कंपोजिशन को लेते हुए इसमें आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है. 150 to 200 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है. आपने अभी अभी एक स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक हॉस्पिटल को विज़िट किया है. आप एज ए रिपोर्टर उनको एकम्पनी कर रहे हो और बच्चों का जो वार्ड है हॉस्पिटल में वो बहुत ही साफ़ सुथरा है. इसी वजह से आपने हर एक पॉसिबल डिटेल जो है वो इमेजिन करते हुए एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि आप ही के न्यूज़पेपर में लाइक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली है. तो उसके लिए आप क्या एफ़र्ट्स कर सकते हो, क्या लिख सकते हो. रिपोर्ट का फॉर्मेट लेके चलना है आपने अपने माइंड में और सारी चीज़ें जो हैं रिपोर्ट की तरह जैसे पास्ट में हम रिपोर्ट्स लिखते जाते हैं आपने रिपोर्ट अपनी प्रेजेंट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. यू आर राखी राजेश एंड यू feel disturbed at the growing trend of violence among the youth nowadays. Write a speech to be delivered in the school assembly on the topic growing violence among the teens. Give suggestion on how to curb this trend. 150 to 200 words और ये भी अगेन 10 मार्क्स का है. तो इसमें आप स्पीच लेके चलोगे जो आपने असेंबली में डिलीवर करनी है जिसका थीम है ग्रोइंग वायलेंस अमंग टीन्स. आपने सजेशंस देनी है कि इसको या इस प्रॉब्लम को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इसके रेमेडियल मेजर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं. इसी के साथ आपके पास डिबेट है. डिबेट मतलब स्पीच और डिबेट में और है. आप दोनों में से एक टॉपिक जो है अच्छे से अगर कर सकते हो तो आप इन दोनों में से देख के चूज़ कर सकते हो कि आप किसके ऊपर अच्छा सा लिख सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में जो क्वेश्चन और है, राइट ए डिबेट ईदर फॉर. ईदर मतलब फॉर और, या तो आप पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, फेवर में लिख रहे हो या फिर अगेंस्ट में लिख रहे हो. और अगेंस्ट द मोशन. द इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी अ बून फॉर द स्टूडेंट्स. यू आर राहुल रोहिणी. 150 to 200 वर्ड्स अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आप डिबेट जो है उसमें आप लिखते हुए आंसर में मेंशन ज़रूर करोगे कि आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हो या फिर आप फॉर द मोशन लिख रहे हो. पहला तो आप ये लाइन लिखोगे फिर उसके बाद टॉपिक का नाम लिखोगे. इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी अ बून फॉर स्टूडेंट. इंटरनेट जो है एक वरदान जो है बच्चों के लिए है या गिफ्ट है बच्चों के लिए. तो आप उसको कैसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर नाउ वी आर here at section C which is literature textbook, right. तो 7th क्वेश्चन जो है आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और उसके आंसर जो हैं क्वेश्चन के आपने बताने हैं. जो आपके मार्क्स हैं वो बताए हैं 4 + 4 = 8. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ऐसा है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked, but soon put that thought away. Who is I? 1 mark. What worried I when I looked at his or her mother? 1 mark. Why was the realization painful? 1 mark. Name the figure of speech used in the line. I am not going to repeat. तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन है. ये 4 क्वेश्चन है. इसके पार्ट बी में क्वेश्चन है, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu. Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. आपने इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस निकालने हैं वो भी 1 मार्क के. तो ये टोटल आपका क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का बनता है. इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंगल लाइन जो है उनमें इनके आंसर्स जो हैं वो लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8 इज़
यहाँ पे आपने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो लिखने हैं, जो आपको लगता है कि हमें अच्छे से आते हैं वही वाले 5 जो है आपने लिखने हैं। इनकी वर्ड लिमिट जो है वो 30 to 40 वर्ड्स है। मीन्स आप 3 to 4 लाइन्स में इनका आंसर जो है वो दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो 150 वर्ड तक आप उसको लिख सकते हो। दिस इज़ द वर्ड लिमिट। What is the misadventure that William Douglas speak about? What were the series of emotion and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? तो ये डीप वाटर से क्वेश्चन लिया हुआ है। विलियम डुगलस जो है इसके राइटर हैं, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया जब उनको पूल में फेंक दिया गया। और इसके साथ आपको चॉइस मिल रही है, सोफी ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सोफ़ी के जो दिमाग में ड्रीम्स चल रहे थे या डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, वो उसकी ही इमेजिनेशन का रिज़ल्ट था, उसी को आपने जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड। ये भी लॉन्ग है। वन इज़ फ्रॉम, यहाँ से दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको फ्लेमिंगो बुक से मिल रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके हैं विस्तार से। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इवान ट्राइज एन ओ लेवल से है। सेकंड जो है वो आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से है। तो इवान एस्केप केम अबाउट not only because of his own smartness but also because of his mistakes of the prison staff described। तो आपने इवान का यहाँ पे बताना है कि उसने जब जेल से जब वो चला गया तो इट्स नॉट ओनली हिज विद हिज ओन स्मार्टनेस, लेकिन इसमें फॉल्ट जो है या मिस्टेक जो है वो प्रिजन स्टाफ की भी है जो वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड था। तो इसको आपने डिस्क्राइब करना है। Though Jiclasas and Dwama come from two vastly different cultures, yet they are united in common bond. What is this bond and how do they overcome their hurdles? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको लिखने में मटेरियल जो है वो ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप जिक्लासा और वामा दोनों का डिफरेंट कल्चर जो है वो बता सकते हो, कैसे उनके बीच में कॉमन बॉन्ड था, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो सप्रेस्ड थी और उनका जो बॉन्ड है उन इसी चीज़ ने उनको कैसे स्ट्रॉन्ग किया या कैसे उन्होंने अपने हर्डल्स को क्लियर किया। सो यू कैन राइट इन योर ओन वेज। डू हार्ड वर्क, प्रिपेयर एवरीथिंग in a very good great going so that you can write each and every information which is collected by your mind while reading your text। so पढ़ो अच्छे से, अपनी क्वेरीज जो है वो क्लियर करो अपने टीचर्स के सामने, टीचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करो, उनसे डिस्कस करो। कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप खुद जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो हर सब्जेक्ट में ट्राई करो। सो डू हार्ड वर्क विद ऑल द बेस्ट विशेस। दिस इज़ द फर्स्ट पेपर, ओल्ड पेपर आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आने वाली वीडियोस में ऐसे और भी पेपर्स जो हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू ऑल, हैव ए ग्रेट